اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، اللہ معاف، یہ کو لفظ ایسے نہیں پڑھا میں نے، بلکہ یہ آج کا میرا موضوع ہے اور ہم نے ان 3 4 یا 5 لفظوں کا جو مجموعہ ہے اس کے بارے میں بات کرنا ہے اور تفصیل میں جانا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن قرآن نے کیا دی ہوئی ہے اور ہم کہاں پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، پھر ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھال کے تصحیح کرنی ہے ساری، اور میرا مقصد اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ آیت جو ہے یہ آج کا ہمارا موضوع بحث ہے۔ اس میں وہی الفاظ آتے ہیں جو إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ میں نے پہلے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کا اس امتحان لیا جائے گا، آپ کو آزمایا جائے گا بڑے اچھے طریقے سے۔ کن چیزوں سے؟ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف سے، ابتلا سے اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال و دولت کے ضائع ہونے کی وجہ سے، اور مال و دولت کا گھاٹا دلا کر آپ کو آزمایا جائے گا، وَالْأَنفُسِ اور افرادی قوت کی تعداد کا گھاٹا دے کر آپ کو آزمایا جائے گا، وَالثَّمَرَاتِ اور اس کے 2 معنی ہوتے ہیں جو قرآن پاک کے حساب سے ہیں۔ ایک تو ہے کہ وَالثَّمَرَاتِ جو دنیا میں ہماری فصل باڑی ہے، کھیتی باڑی ہے، ساری کی ساری وہ بھی آ جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے اعمال ہیں اس کے وہ نتائج ہیں، جو بعض کا ہم نتائج کچھ امید کرتے ہیں لیکن وہ کچھ مختلف آتے ہیں، تو اس وقت ہوتا ہے کہ بس ثمرات کے جو آپ کی امیدوں کے نتائج ہیں وہ آپ کے امید کے خلاف آتے ہیں، تو اس کا ثمر کیا ہوتا ہے، پھر آپ پہ کیا گزرتی ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور جو ان ساری چیزوں پہ لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری کس بات کی ہے یہ میں دوبارہ پھر سے انہی آیتوں پہ آؤں گا، جب اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر اس کا میں واضح کروں گا کہ بشر سے مطلب کیا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ اور ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، مصیبت قالوا وہ کہتے ہیں إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ ہی کی طرف احکامات جو ہیں تب آئے ہیں وہ ہم نے ماننے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کے بھی جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف سے، جن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے اور صلوات، داد و تحسین، اور ان کے جو انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں اس کی قدردانی ان کو بتائی جاتی ہے اور ان کو آفرین کہا جاتا ہے، شاباش کہا جاتا ہے۔ اولئک هم المہتدون، یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، جو ہدایت کا پیرامیٹر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، جو اس پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ ہیں جن پر ہدایت طاری ہوتی ہے۔ اب اس میں جو ہم مین ڈسکس کرنے والے ہیں وہ یہ چیز ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، یہ لفظ ہے اور یہ کب کہا جاتا ہے؟ اصابتہم مصیبہ، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آن وارد ہوتی ہے اس وقت کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم مصیبہ کے لفظ پہ فوکس کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے، کہ مصیبت جو ہے یہ قرآن پاک میں کن معنی میں استعمال ہوئی ہے اور کن موقعوں پہ یہ لفظ آیا ہے اور یہ موقع ہیں کہ جب کہ ہم نے یہ کہنا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ آج کل جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، پتہ نہیں کرنوں سے، صدیوں سے، کتنے سالوں سے یہ چل رہا ہے، کسی عزیز کی وفات ہوتی ہے تو فوراً کہہ دیتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ اب پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ہم قرآن سے پوچھیں گے۔ کسی بندے پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، محلے میں لڑائی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں جی اِنَّ لِلَّهِ پڑھو، اللہ تعالیٰ مصیبت ٹال دے گا، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر کام کرنے والا ہے، اللہ کو یاد کرو، اللہ کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کسی ہمسائے کی لڑائی سے، کسی بچوں کی لڑائی سے خوف زدہ ہو کر یہ چیز پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ہم نے فیصلہ قرآن سے کروانا ہے۔ اب مصیبہ کے لفظ کو تھوڑا سا دیکھنے کے لیے ہم قرآن پاک کے مختلف آیات سے پوچھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ آل عمران میں اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ، اور جب تم پر مصیبت آ گئی ہے
अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन कद असबतुम बिस्लैहा, अगर तुम पर आज मुसीबत आ गई है हालांकि इससे पहले तुम इसी की मिसाल, इसी के तरह की मुसीबत उन पे डाल चुके हो। ये बेसिकली जंगों का वाकया है जो गज़वात हुए हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में, उनका जिक्र किया जा रहा है कि अगर जंग में कोई इब्तला आ गया है, जिसे जंगी इब्तला कहते हैं, जंग की वजह से किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाना, उस इब्तला की वजह से आप घबरा गए हो, हालांकि यही इब्तला उन लोगों को यानी कि काफिरों को आप बहुत पहले ऐसा ही इब्तला बल्कि इससे भी बढ़ के इब्तला दे चुके हो, जंगी मुसीबत में डाल चुके हो। तो जब आप पे मुसीबत आई है फिर आप कहते हो कुल तो मन्ना हाजा, ये मुसीबत कहाँ से आ गई है। कुल हुवा मिन इंदी अनफुसिकुम, यहाँ पर अल्लाह ताला जब कुल कहते हैं, जब कुल कहता है अल्लाह ताला तो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करता है अल्लाह, अपने महबूब को मुखातब करता है अल्लाह। इन लोगों से कह दो इंदी अनफुसिकुम कि ये तुम्हारी ही वजह से है, सारा कुछ तुम्हारी ही गलतियां होंगी, कोई इनका एनालिसिस करो बैठ के, तुम्हारी ही कोताहियां होंगी, इनके बारे में सोचो बैठ के कि क्या यह मुसीबत तुम्हारी वजह से है या बिला वजह से नहीं आ सकती। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादर है, अल्लाह ताला तो हर चीज से बेनियाज है। अल्लाह के नज़दीक कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला को किसी भी चीज़ से आजिज कर दे। अब अल्लाह ताला इन चीज़ों का मोहताज नहीं है कि अल्लाह के लिए चंद एक लोग मुसलमान हो गए हैं तो अल्लाह ताला उनकी हर बात माने चला जाए, माने चला जाए, माने चला जाए, वो गलतियाँ भी करें तब भी बात माने चला जाए। अल्लाह के असूल, अल्लाह का कानून कुछ और ही कहता है कि जो अल्लाह ताला के लिए, जैसे पिछले लेक्चर में हुआ था कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों की जानों का सौदा कर लिया है, उनके रिज़्क़ और उनके जानों का ले लिया हुआ है, जन्नत के भी उनका सौदा कर लिया है। और यहाँ पे यही सूरत हाल है कि अल्लाह ताला अगर जंग में कोई मुसीबत डालता है तो हमारी गलतियाँ अपनी ही होती हैं, लेकिन हम अल्लाह से शिकवा करने बैठ जाते हैं कि या अल्लाह ये मुसीबत कहाँ से आ गई है। हम अगर अपना एनालिसिस अच्छी तरह से करें तो ये कम्प्लीटली वाज़ेह हो जाता है कि हाँ जी ये मुसीबत हम पे क्यों आई है। इसी तरह से सूरह निसा में आयत नंबर 62 में अल्लाह ताला का फरमान है, फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कि ये मुसीबत कैसे उन पर नाज़िल हो गई है, बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, ये भी उन्हीं की वजह से है। अब हमने ये सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ पे देखनी है, इनमें देखना है कि आप मुसीबा का लफ्ज़ कहीं भी ऐसी जगह पे इस्तेमाल हुआ है जहाँ पे किसी सिंगल बंदे के लिए हो, इनफरादियत की वजह से हो, किसी एक आदमी के लिए हो, या ये इज्तिमाई ये गलतियों की वजह से होता है। अब पिछली आयत है उसमें भी हमने यही देखा है कि जब मुसीबा का लफ्ज़ आया है तो असाबहुम आया है कि यहाँ जी तुम पर मुसीबत आई है, ये मजमूई तौर पर है, इज्तिमाई गलतियों की वजह से इज्तिमाई मुसीबत है। और यहाँ पर भी जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है असाबतुम मुसीबा, ये भी जमा के सीगे में इस्तेमाल हो रहा है, सिंगल में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल है जो मुस्तमिल होता है वो बहुत ज़्यादा सिंगल मामलात में होता है। इज्तिमाई मामलात में हम इसको इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ये वाज़ेह नहीं हो रहा है कि इस लफ्ज़ को हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे नहीं इस्तेमाल करना। और साथ में अल्लाह ताला ये सनद दे रहा है बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, ये तुम्हारी ही वजह से है, तुम्हारे अपने हाथों की कमाई की वजह से है, तुम्हारी अपनी गलतियों की वजह से है। सुम्मा जाऊका यहलिफून, फिर वो आपके पास आके हल्फ उठाते हैं, कसमें खाते हैं, बिल्लाहि इन अरदना इल्ला इहसानन व तौफीका, कि हमारा इरादा ये तो नहीं था, हमारा इरादा तो सिर्फ ये था कि आपस में एहसान किया जाए और बेमनाफ रखा जाए। फिर इससे आगे आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला फरमाता है वइन्ना मिनकुम लमन लयुबत्तिअन्न फइन्ना असाबतकुम मुसीबतुन क़ाल क़द अनअल्लाहु अलैया। अब यहाँ पे भी हमने देखना है कि क्या ये मुसीबत का लफ्ज़ जो है कहीं सिंगल आदमी की गलती की वजह से तो नहीं आया है, किसी एक आदमी पे तो वारद नहीं हुआ है। यहाँ भी असाबतकुम है जो जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये मुसीबा का लफ्ज़ यहाँ भी जमा के ही सीगे में आया हुआ है। सिर्फ ये है कि सिनेरियो उससे मुख्तलिफ है, सिनेरियो जो भी होगा, बैकग्राउंड जो भी होगा, पीछे जो भी मामलात होंगे, सारे के सारे एक अलग चीज़ें हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि जो मुसीबा का लफ्ज़ है ये कहीं पे सिंगल तो नहीं आया, जहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया हो कि आप पे एक बंदे पे कोई मुसीबत आ जाए, आपको कोई एक अजीज़ फौज हो जाए तो फौरन तस्बीह की तरह रटना शुरू कर दो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बातें कुरान में नहीं मिलती हैं, कुरान में इज्तिमाई मुसीबत है सारी की सारी जो भी डिस्कस हो रही है।
اس کے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ توبہ میں، آیت نمبر ہے 50، ان تصب کا حسنۃ تسؤہم و ان تصب کا مصیبۃ۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو مصیبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ کیا یہ کسی سنگل بندے کے لیے استعمال ہوا ہے؟ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل وتولوا وهم فرحون۔ یہ جنگ کے زمرے میں بات کی گئی ہے کہ جو لوگ جنگ میں آگے جانے کے لیے رک جاتے ہیں، وہ نہیں جاتے ہیں، تو وہ بعد میں خوش ہوتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے بہت اچھا کیا تھا۔ اس پہ ہم نے کا صیغہ استعمال ہے، اور یہ بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس میں بھی واہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ شورا میں، آیت نمبر ہے 30، یہاں پہ ہے اللہ کا ارشاد ہے وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہاں بھی وہی صورتحال ہے، وما اصابکم من مصیبہ، یہاں بھی مصیبہ کا لفظ، مصیبت کا لفظ جمع کے سیغے میں آ رہا ہے، سنگل کے سیغے میں نہیں آ رہا ہے، بعض کے سیغے میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خطائیں معاف کرنے والا ہے، لیکن غلطیوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے تاکہ ہم اس مصیبت کے زمرے پہ پھنس نہ جائے کہیں۔ اس سے آگے اللہ کا فرمان ہے سورہ الحدید میں، آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اب اس میں بھی دیکھنا یہ ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض، دنیا میں کوئی مصیبت ایسی نہیں آتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھنا رکھا ہو۔ جب بھی کوئی مصیبت ہم پہ آن لاگو ہوتی ہے، آب وارد ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے لکھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہوتا ہے، اللہ نے اس کا حساب کتاب پورا کر لیا ہوتا ہے بھی ہاں جی یہ قوم اب مصیبت کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس قوم کی غلطیاں بے انتہا کچھ ہو گئی ہیں، اس قوم کا ایمان جو ہے وہ ڈاماڈول ہو رہا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ڈالنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان کام ہے۔ اس سے آگے سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا ہے اور کذب کیا ہے، ان لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب ان کا انجام جو ہے یہ بھی سنگل فرد کے لیے نہیں بیان کیا گیا ہے، یہاں بھی یہی ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر، کہ وہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے جو مل جل کر اکٹھے ہو کر میری آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ان سب کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا، اور اللہ معاف کرے دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب اسی سینیریو میں ان کو جب دوزخ میں داخل کیا جائے گا، وہ کو آسانی والی یا خوشی والی بات تو ہوتی نہیں ہے، وہ بھی مصیبت والی بات ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے علاوہ وارد ہوتی ہو۔ کوئی ایسا نہیں بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی اللہ کا حکم نہیں تھا، یہ پتہ نہیں کیوں ابھی میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اب یہ یہاں پہ بہت بڑی ایک سند اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ جو بندہ ایمان لائے گا، جو میرے پہ ایمان لے آئے گا، اللہ تعالیٰ کو اللہ مانے گا، اللہ کے احکام کو مانے گا، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے کالم میں ڈھال لے گا، اس میں کیا ہے یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت یافتہ کر دے گا۔ اب اس سے بڑی سند اللہ تعالیٰ نے کہاں دینی ہے؟ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب یہ ہم نے تعارف کروا دیا ہے آپ کو مصیبہ کے لفظ کا، کہ مصیبہ کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ کس سینیریو میں استعمال ہوتا ہے، اور ہم جب کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کیا ہم اس پہ پورے اترتے ہیں یا کوئی ہماری اور ریزن ہوتی ہے؟ اب اس میں ہے کہ میں نے کہا تھا دوبارہ میں پھر اسی آیت پہ آؤں گا۔ اب یہاں پہ اوپر سے میں اگر پڑھنا شروع کروں تاکہ یہ سینیریو واضح ہو جائے کہ یہ مصیبت آنے کا جو پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، جو پیچھے سے صورتحال چلی آ رہی ہے، وہ ہے کیا۔
यहाँ पे अल्लाह ताला का फरमान है कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना, कि ऐसे ही है इसकी मिसाल कि हमारा रसूल जो है, हमने जिसको रसूल बनाकर भेजा है वो तुम में से ही है और वो तुमको आयात पढ़कर सुनाता है। कौन सी आयात? अलैकुम आयातिन है, जिसको हमने उसके ऊपर उतारा हुआ है, वो आयात पढ़ के आपको सुनाता है। अब उन आयात में है क्या जो आपको पढ़ के सुनाता है और उनका असर क्या होता है? वयुज़क्कीकुम, वो आयात जब आपको पढ़ के सुनाई जाती हैं तो वो आपके दिलो ज़हन की ततहीर करती हैं, तज़किया करती हैं, आपको पक्के सच्चे मुसलमान बनाती हैं। वयुअल्लिमुकुमुल किताब, अब इस लफ्ज़ की गहराई में जाके ज़रा सोचा जाए कि वो तुम्हें तालीम देता है किताब की। इस लफ्ज़ को पढ़ते हुए मुझे रश्क आता है, मेरा कुर्बान हो जाने को जी चाहता है उन लोगों की किस्मत पे जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन थे और उनको इस किताब की यानी कि कुरान पाक की तालीम देने वाली हस्ती अल्लाह ताला की महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनको तालीम किया करते थे। अब उनके और हमारे कुरान के समझने में कितना फ़र्क होगा, ज़मीन व आसमान का फ़र्क है ये। उनका समझाया हुआ कुरान 100% सहाबा इकराम के जहनों में बैठ जाता था। और एक बीच में बात मैं थोड़ी सी कहता चलूँगा जो इससे रिलेटेड तो नहीं है, हमारी तारीख से रिलेटेड है, हमारे इस्लाम से रिलेटेड है। वो बात ये है कि ये वही तालीम है कि जिस तालीम में कुरून ऊला में मुसलमानों के अव्वलीन चंद सदियों में जहाँ पर कुरान के आलम, अहादीस के आलम और दीन के आलम पैदा किए हैं, वहीं पे साइंसदान भी पैदा किए हैं। साइंस का इल्म, मैंने अपने एक लेक्चर में कहा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक सोचा था कि हाँ जी ये क्या है, जब तक आप सवाल नहीं सोचोगे साइंस का इल्म नहीं जनरेट होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यही सोचा था कि अल्लाह से सवाल किए थे, फिर अल्लाह ताला ने जवाब दिए हैं, तो यहाँ से साइंस जनरेट होती है। ये सारी चीज़ें कुरान में दी हुई हैं और ये हमारे नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको वयुअल्लिमुकुमुल किताबा का दर्स दिया है, इस किताब को पढ़ाया है, तो साथ साथ ये सारी चीज़ें उनके ज़हनों और दिलों में मुंतकिल हुई है। और यही वो इल्म था जिस इल्म ने तीन बर्रे आज़मों पर हमारी हुकूमत कायम कर दी थी। ये उस वक्त के हिसाब से हमारी गुड लक थी। आज हमारे पास मास वाई जासो नाउमीदी के और कुछ बचा नहीं है। उसकी वजह क्या है कि ये युअल्लिमुकुमुल किताबा का हमने दर्स छोड़ दिया है। इसको ना हम समझते हैं, ना कोई उस लेवल का समझाने वाला है। हमारी किस्मत की बात है, अल्लाह ताला हमें राह रास्त पे लाए। बात आगे करते हैं। वह युअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमा, इस किताब का तालीम करना और इस किताब की जो असल हिकमत है, दानाई है, जो इसमें राज पोशीदा हैं, वो सारे के सारे बताया करता है हमारा रसूल। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, और तुम्हें उस चीज़ की तालीम देता है जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो। अब ये इसी तालीम का नतीजा है जो ऊपर किताब की तालीम दी गई है, जो इल्म दिया गया है, जो ततहीर की गई है साहबा की, उसका नतीजा है आगे जाके अल्लाह ताला फरमाता है वस्फज़कुरूनी यज़कुरुकुम, मुझे याद करो मैं तुमको याद करूँगा। अब इसका मतलब ये नहीं बनता है अल्लाह माफ़ करे कि हम तस्बीह करके या अल्लाह करते रहे हों, या अल्लाह वहाँ या अब्दी करता है, ये नहीं हो सकता। फज़कुरूनी, जो तालीम ऊपर हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी है, जो कुरान पाक का दर्स दिया है, उस दर्स को याद रखना, उससे नसीहत पकड़ना और उस पकड़ी हुई नसीहत को अपनी ज़िंदगी पे तारी करना, लागू करना और उस तारी की हुई नसीहत के ऐन मुताबिक अपनी ज़िंदगी के अमल करना और अपनी ज़िंदगी को ढाल देना, ये है फज़कुरूनी। ये छोटा सा लफ्ज़ नहीं है कि हाँ जी चंद हरफों का मजमूआ है तो जो छोटा सा लफ्ज़ है हमने बैठ के सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर लिया है तो हम इस लफ्ज़ पे पूरे उतर गए हैं, ये पूरा नहीं होता था। हमारी ज़िंदगी सुबह से लेके अगले दिन सुबह तक अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ढलेगी तो फिर उसका नतीजा क्या हुआ होगा कि अज़कुरुकुम, मैं तुम्हारे इस जिक्र की, इस नसीहत की कदर करूँगा। अल्लाह ताला अल्लाह माफ़ करे हमें याद नहीं करता, हमारे अमाल को अल्लाह ताला अगर सिर्फ और सिर्फ दरखोरे इतना समझ ले और उनके एवज हम पे अपनी रहमत फरमा दे तो हमारे लिए ज़िंदगी की यही कामयाबी है।
वशकुरूनी वला तकफुरून, मेरा शुक्र अदा करो, मेरी बातों का कुफ्र मत करो। ये आयत की अभी तफसील में नहीं जा रहा हूँ मैं, ये फिर कभी जाएगी इंशाल्लाह। इससे अगली आयत भी अभी थोड़ा सा पेंडिंग रखेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र, ए ईमान वाले लोगों, ए लोगों जो ईमान ले आए हो अल्लाह पर। अल्लाह पर ईमान लेने का मतलब यह है कि अपनी ज़िंदगी, अपने अमल, अपने अतवार को, हर चीज़ को अल्लाह के मुताबिक ढाल लेना, यह है अल्लाह पर ईमान लेना। अब जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए हैं, अल्लाह ताला उनसे कह रहा है आमनू इस्तईनू बिस्सब्र, सब्र से मेरी मदद तलब करो। सब्र क्या चीज़ है, किन बातों पे सब्र करना है, ये आगे इसी आयत को हम आज इंशाअल्लाह मौजू बना रहे हैं। बेसब्र वस्सलात, सलात का एक अलग टॉपिक है, ये इंशाल्लाह मैं जब शुरू करूंगा इसकी बहुत तफसील में जाएंगे और कई हफ्तों का ये काम होगा। इसलिए यहाँ पे सिर्फ यही समझ लो कि सब्र के साथ और नमाज के साथ अल्लाह ताला की मदद तलब करो। सब्र क्या चीज़ है ये आज ही आ जाएगा, सलात का मौजू फिर कभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, जब इस सब्र को आजमाओगे आप, जो अल्लाह ताला इससे आगे सिनेरियो दे रहा है, तो फिर अल्लाह ताला हमारे साथ होगा, फिर अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होगा। अब इससे अगली बात क्या हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तालीम की है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते हैं उनको मुर्दा मत कहो। अब ये हमारी तालीम का एक कोहान है, उनकी जैसे कोहान होती है, एक चोटी है हमारे इस्लाम की तालीम की। बल अहयाउन, वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, और तुम उनका शऊर नहीं रखते हो। जो लोग अल्लाह ताला की खातिर मुर्दा हो जाते हैं, अल्लाह ताला की रास्ते में शहीद हो जाते हैं, वो मौत को गले लगाने के बावजूद भी जिंदा रहते हैं, ये अल्लाह ताला की एक अनायत है। और अल्लाह ताला जिसको अपनी जिंदगी बख्शना चाहता है उसको अपनी शहादत के लिए, अपने रास्ते में शहादत के लिए कबूल कर लेता है। अब आगे बात आ रही है जिसको आज हमने डिस्कस करना है। ये जो पिछली आयतें गुजरी है इनको इंशाल्लाह फिर कभी आइंदा के लेक्चर में हम लेंगे। आयत आ रही है, वला नबलुवन्नकुम बिशैय्यिम मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि। अब ये आ रही हैं वो चीज़ें जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है आमनू इस्तईनू बिस्सब्र, सब्र किन चीज़ों पे करना है हमने। अल्लाह ताला फरमाता है वला नबलुवन्नकुम, तुम्हारा इम्तहान लूंगा मैं, तुम्हारा इम्तहान लिया जाएगा। ईमान लाना बहुत आसान सी बात है, कलमा पढ़ लिया ईमान ले आए, बात खत्म हो गई। लेकिन असल माना ये है कि फ़ज़्कुरूनी का मतलब ये है कि इस कुरान की हर तालीम को, इस कुरान के हर लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना, अपने तौर तरीक़ों में शामिल करना, अपने अमल से ज़ाहिर करना, ये होता है असल फ़ज़्कुरूनी का मतलब। और यही चीज़ है वला नबलुवन्नकुम, कि तुम्हारे ईमान को आजमाया जाएगा। किस तरह से आजमाया जाएगा? बेशय्यिम, बहुत बारीक बीनी के साथ। ये मामूली सी बात नहीं है कि अल्लाह ताला किसी के ईमान को आजमाए। ये कोई मामूली सी बात नहीं है कि अल्लाह ताला किसी की ईमान को आजमाए और बड़े एक आपसे तरीके से आजमा के अल्लाह ताला फैसला कर दे। अल्लाह माफ़ करे, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वला नबलुवन्नकुम बिशैय्यिम मिनल खौफ, तुम्हें बड़ी बारीक बीनी से तुमसे इम्तहान लिया जाएगा, तुम्हें आजमाया जाएगा। मिनल खौफ, खौफ के जरिए से। खौफ किस तरह से होगा? मैंने पहले से कहा है, किसी मोहल्ले के लोगों से लड़ाई हो जाना ये कोई खौफ का पैरामीटर नहीं है। बच्चे स्कूल में लड़ पड़े हैं, मामला हो गया है गंभीर, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ जी खौफतारी हो जाए हम पे। इंडिया हमारे पड़ोस में रहता है, हम पे हर वक्त धमकियां लगाता रहता है, ये कोई खौफ का आलम नहीं है, क्योंकि इसको हम आगे बढ़ाते ही नहीं है जहाँ पे खौफ का जाके पैरामीटर पूरा होता है, इसलिए खौफ नहीं है ये। अमेरिका बहादुर हमें ऑर्डर देता है ये काम करो, ये ना करो, ये खौफ नहीं होता है। बल्कि खौफ जो चीज़ है वो आगे एक आयत में, मैं इस आयत का तर्जुमा पूरा करने के बाद एक आयत कुरान पाक की पढ़ के आपको बता दूंगा खौफ होता क्या है। वल जूए, और उस खौफ के आलम में भूख देकर आपको, भूखा रख कर आपको आजमाया जाएगा। वनक्सिम मिनल अम्वाल, और आपके माल दौलत को छीन कर। अब इसमें जो बातें पीछे से आ रही हैं ये शुहदा का तज़किरा है। शुहदा जंग में होते हैं, लड़ाई में शहीद होते हैं लोग, लड़ाई के बिना हो नहीं सकते। अब उसी के साथ ही जुड़ी हुई आयत है कि जो लोग शहीद हो गए हैं उनको मुर्दा मत कहो, वो दायमी जिंदा हो चुके हैं।
अपनी ज़िंदगी को वो अबद कर चुके हैं, अपनी ज़िंदगी को वो लाजवाल बना चुके हैं वो लोग। अब जो बाकी उसी जंग में जिंदा बच के हैं, अल्लाह ताला उनका इम्तहान ले रहा है। वरनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ, कि तुम्हारा इम्तहान लिया जाएगा बहुत बारीक बीनी के साथ, तुम्हारे खौफ के साथ। अब अगर जंगी उहद का वाक़या हम याद करें, जब कुछ सहाबा को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहाड़ों के दरमियान में जो रास्ता बनता था उस घाटी पे खड़ा कर दिया था कि आपने यहाँ से हिलना नहीं है, जंग पे बेशक हमें फतह होती है या शिकस्त होती है, अल्लाह माफ़ करे, जो भी सूरत हाल बनती है, आपने ये घाटी नहीं छोड़नी है। लेकिन शैतान के बहकावे में आ गए, वो भी इंसान ही थे, आखिरकार गलती कर गए थे वो लोग, उस घाटी को छोड़ दिया है। और हज़रत खालिद बिन वलीद जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, वो काफरों की तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने मौके को गनीमत जाना है। जंगी चाल होती है, हर बंदा जंग करते हुए जंगी चालें चलता है, उन्हें एक जंगी चाल चली है। अपने चंद एक दोस्तों को लिया है, पीछे से घोड़े दौड़ाते हुए उस घाटी के पिछली तरफ से आके मुसलमानों पे हमला कर दिया है। अब उस हमले में सारे लोगों ने तफसीलात ये सुन रखी होंगी, तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। उस हमले में कितना नुकसान हुआ मुसलमानों का, इवन के हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद जख्मी हुए उस हमले में। अब उसमें खौफ का आलम क्या होगा ये आप सोच सकते हो। ये होता है खौफ। और जब ऐसी सूरत हाल बन रही हो, भूख लग चुकी हो, आदमी पानी पीना हो, भूख लग चुकी हो, प्यास लग चुकी हो, लेकिन खौफ का ये आलम है कि पता नहीं अब जान गई कि अब गई। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाता है बेशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि। अब उस वक्त माल दौलत की किसी को फिक्र नहीं होती है। वल अनफुसी, अब वैसी ही सूरत हाल है, वही सूरत हाल है जिसमें जान का खदशा होता है। अब जान में नक्स आना, जान में कमी आना, अफरादी कुव्वत में कमी आना, ये जंग में शहीद हो रहे होते हैं लोग, जख्मी हो रहे होते हैं लोग। तो ये उस तरफ इशारा है बस समरात। और ये मैंने पहले कहा था, इसके दो तर्जमे हो सकते हैं, बाकी भी चीज़ों के तर्जमे और भी तरह से हो सकते हैं, वो भी करके बताता हूँ मैं। बस समरात, अब देखो मैंने पहले कहा था कि उम्मीद कोई और लगा रखी है, लेकिन नतीजा कोई और आ गया है। अब उम्मीद लगाई थी मुसलमानों ने कि हम जंग जीत चुके हैं, अब मसला खत्म हो गया, तो वो घाटी छोड़ के भाग गए थे माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए। लेकिन रिजल्ट उनके तवक्कुआत के बिल्कुल खिलाफ हो गया। नताइज का जब खिलाफे उम्मीद हो जाना, ये भी बस समरात के जुमरे में आता है। वबश्शिर साबिरीन, और ये अल्लाह ताला अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब करके कहता है वबश्शिर साबिरीन को, उनको खुशखबरी दे दो। किन को खुशखबरी दे दो? जब बशर के लफ्ज़ बाद में आता हूँ, पहले है साबिरीन, कि जिन लोगों ने ये सारी सूरत हाल में सब्र किया है, इस्तकामत से रहे हैं। सुम्मस्तकाम, जो लोग इस्तकामत पे रहते हैं ईमान ले आने के बाद, उनके बारे में ये सारा है कि उनको खुशखबरी दे दो। क्या खुशखबरी दे दो? कि जिन लोगों ने इतनी कुर्बानी दी है, उनके साथी शहीद भी हो चुके हैं, और बाकी जो बचे हैं वो दुनिया के अजीम तरीन इम्तहानों में कामयाब हो चुके हैं, वहाँ पे सब्र किया है। और उन लोगों को खुशखबरी दे दो। खुशखबरी किस चीज़ की है? अल्लाह ताला की खुशनुदी की। और जब अल्लाह ताला किसी इंसान पे दुनिया में खुश हो जाए, वो इंसान जिंदा सलामत हो, तो दो कामयाबियाँ मिलती है अल्लाह इंसानों को। एक कामयाबी होती है दुनियावी ज़िंदगी की, कि दुनिया के हर इम्तहान में अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई है। दूसरी कामयाबी होती है आखिरत की, क्योंकि अल्लाह ताला का ये रूल है जो हमें बताया हुआ है कि दुनिया की कामयाबी के जलाव में आखिरत की कामयाबी चलती है। कभी ये हो नहीं सकता कि इंसान दुनिया में जो जी चाहे करता फिरे आखिरत में कामयाब हो जाए। अल्लाह माफ़ करे, ये अल्लाह का असूल ही नहीं है। मैंने सारा सिनेरियो आपके सामने रख दिया है, हर चीज़ को खोल के मैंने बता दिया है। इस लफ्ज़ की पूरी तशरीह कबाहत को हो जितनी अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, मैंने आपके सामने कर दी है। अब इस लफ्ज़ को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को इस्तेमाल करने का फैसला आपने करना है, बट यू हैव टू डू। अल्लाह ताला हमें राह रास्त पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।